Today I will study about the present tense, the present tense and its form. Today I study about present tense and its form. The first definition of present tense: when a sentence when a sentence denotes that action is done in present time, the sentence is said to be in प्रेजेंट टेंस। एक्शन अगर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है द सेंटेंस इज सेड टू बी प्रेजेंट टेंस। when the sentence denotes that action is done in present time, the sentence is said to be present tense. Then come to tense form. Tense forms, there is four type. First one is present indefinite, or it is called present simple or simple present. It is called simple present. Second one is present continuous or present progressive. Present continuous जो है present progressive is same. Third one is present perfect. Fourth one is present perfect continuous. These four types: present indefinite or present simple, present continuous or present progressive, present perfect continuous. Then four types. Then come to present. First one is present indefinite or simple present. तो एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट। सपोज एग्जाम्पल, आई डू माई होमवर्क। आई डू माई होमवर्क। तो हियर एक्शन इज डन डेली। डेली होता है डेली इन द प्रेजेंट टाइम, बट एग्जैक्ट टाइम इज नॉट डेफिनेटली नोन, सो इट इज कॉल्ड प्रेजेंट indefinite or present simple. Action which done daily, that is in present time, but its exact time is not definitely known. Another example लेते हैं, I am doing my homework. I am doing my homework. The action which is going on now and here, an action is continuous to be done at the present, so it is called present continuous tense or present tense और रियल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट जो कंटिन्यू चल रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यू, इट इज़ रियल वन। देन अदर एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, आई हैव डन माई homework. I have done my homework. Here action which is going on for some time but has been completed or perfected just in present time. अभी अभी ये कंप्लीट हुआ होगा, तो क्या बोलते हैं, एक्शन which is going on for some time but has been completed or
perfected just in present time. It is called present perfect tense. Then come to another example. I have been doing my homework. Doing my homework. Action is going on. Action is going on through a part of it has been completed. It is continuing even now, though it has been preferred to be certain degree. So it is called present perfect continuous. It is called present perfect continuous. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट और सिंपल प्रेजेंट. I have been doing my homework. Present perfect continuous. Now we have read about present indefinite tense. Present indefinite tense. First one is affirmative or positive sentence. Affirmative और पॉजिटिव सेंटेंस इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस क्या रहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस लगता है. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई गो, वी गो, यू गो रहता है ना. आई कम, वी कम, यू कम. अगर ही हो जाएगा तो यहाँ पे लगेगा गोज, ही गोज, सी गोज. ही कम्स, सी कम्स, ऐसा हो सकता है. इट गोज. दे रहेगा थर्ड पर्सन तो दे गो. जॉन, जॉन रहेगा तो गोज रहेगा. द चिल्ड्रेन, यहाँ पे प्लूरल है चिल्ड्रेन तो यहाँ पे लगेगा गो. आई गो, वी गो, यू गो, ही गोज, सी गोज, इट गोज, दे गो. अगर जॉन सिंगल पर्सन रहेगा तो गोज. चाइल्ड, द चिल्ड्रेन गो. अगर चाइल्ड रहेगा तो गोज होगा. दीज आर द फॉर्म ऑफ वर्ब. टेंस एस, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर एस एस हैज बीन एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब एग्जाम्पल लेते हैं. ही डैश ए स्टोरी और ऑप्शन में रहेगा रीड. तो ही बाकी क्या लगता है, गोज लगता है. तो ही रीड्स ए स्टोरी, ही रीड्स ए स्टोरी. सी डैश ए न्यू साड़ी और ऑप्शन में रहेगा ओयर. तो ऊपर सी है तो ओयर्स लगेगा. ईट, रेन लगेगा, रेन्स तो लगेगा रेन्स. ईट रेन्स हेवीली. दे, दे डैश देयर हैंड्स. तो आंसर होगा वाश रहेगा ना, वाशेस रहेगा, वाश रहेगा. दे वाश देयर हैंड, क्योंकि दे पास गो रहता है. थर्ड पर्सन जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है एस एस लगता है. आई, आई बस क्या रहेगा, डू रहेगा. आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क. ऐसे वी गो टू स्कूल. एग्जाम्पल ले सकते हैं, वी गो टू स्कूल. द टेलर्स
sew new clothes. The tailors sew SEW new clothes. These are the example of affirmative sentence. Now come to नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नाउ नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज फॉर्म बाय डू नॉट और डज नॉट. लगता है क्या? डू नॉट और डज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. क्या रहता है? आई डू नॉट गो. वी डू नॉट गो. यू डू नॉट गो. दे do not go. The girls do not go. The children do not go. But अगर ही रहेगा यहाँ पे लगेगा डॉज. ही डज नॉट गो. इस तरह सी डज नॉट गो. इट डज नॉट गो. जॉन डज नॉट गो. अगर जॉन रहेगा तो डज नॉट गो. तो इस तरह एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे होता है ही डू नॉट रीड्स ए स्टोरी. सॉरी, ही डज नॉट रीड्स ए स्टोरी. ही डज नॉट reads a story. He does not read a story. Similarly, it does not rain heavily. Similarly, I do not go to school. They do not wash their hands, etc. Now come to इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्रेजेंट in interrogative form the present indefinite tense is formed by placing do or does beginning of the sentence. do or does क्या लगेगा? beginning of the sentence. एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि do I go, do we go, do you go, do they go, do the girls go, do the children go, do the children go. बट यहाँ पे डज लगेगा. ही लगेगा तो डज ही गो, डज सी गो, डज ईट गो. कम होगा तो डज इट कम. जिस तरह का डज
जॉन और हरी, जो भी कुछ भी लिख सकते हैं, जॉन गो एटसेट्रा. नाउ कम टू interrogative नेगेटिव इंटरोगेटिव. यहाँ पे क्या लगेगा? नॉट लगेगा. जैसे एग्जांपल, डू आई नॉट गो, इस तरह का सेंटेंस बनेगा. डू वी नॉट गो, और डू वी नॉट कम, डू वी नॉट प्ले, इस तरह का सेंटेंस बनेगा. डू यू नॉट गो, डू दे नॉट गो, डू द गर्ल not go, do the children not go, do the children not go. But यहाँ पे क्या लगेगा? डॉज लगेगा. डॉज ही नॉट गो, डॉज सी नॉट गो, डॉज ईट नॉट गो, डॉज जॉन नॉट गो. इस तरह का सेंटेंस लगेगा. देन कम टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे क्या रहता है? ऑल सेंटेंस प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इसको बोलते हैं. यहाँ पे क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस ईच और आम और आर लगता है, प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है. क्या लगता है? आईएनजी. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यू यूज इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस आईएनजी. तो यहाँ पे क्या होता है? आई एम गोइंग, वी के पास क्या लगता है? वी आर गोइंग. आई के पास लगते हो प्रेजेंट टेंस में, आई के पास आम ही लगता है. आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, you are going, he is going, she is going, it is going, they are going, John is going, the children are going. इस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है. तो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. एग्जाम्पल लेते हैं. सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज writing a letter. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमको क्या बताता है? द एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अभी अभी जो एक्शन हो रहा है, डेफिनेशन तो पहले से दिए हैं, तो अनदर टाइम में रिपीट. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल अस अबाउट द एक्शन दैट आर हैपनिंग right now at the beginning of at the time of speaking. She is writing a letter. Another example is he I am dancing, तो dancing चल रहा है, DANCING. एग्जाम्पल होता है I am doing my homework, I am doing my homework, I doing my homework.
He is reading a story. He is reading a story. She is wearing a new sari. It is raining heavily. It is raining heavily. यहाँ पे क्या लगता है? verb के बाद इजामा लगता है, सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद verb रहता है इजामा, उसके बाद ing लगता है. This is the present continuous tense. It is called affirmative sentence. Positive sentence. Then come to negative sentence. तो नेगेटिव में आपके क्या रहता है? द नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म बाय इंसर्टिंग, क्या रहता है? इंसर्टिंग नॉट आफ्टर इज, आम और आर. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई आम नॉट गोइंग, we are not going, you are not going, they are not going, he is not going, she is not going, it is not going, John is not going, the girls are not going, the children, children, children are not, the children are not going. These are called negative sentence. And then come to interrogative sentence. Interrogative sentence of the present continuous tense is formed by transferring is, am, are at the beginning of the sentence. is, am, are क्या होता है? beginning को चलाता है. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आम आई गोइंग, आई एम गोइंग था, तो यहाँ पे आम क्या होगा? बिगिनिंग को चला जाएगा. आम आई गोइंग और क्वेश्चन मार्क रहेगा. आर वी गोइंग क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, आर दे गोइंग क्वेश्चन मार्क, is he going question mark, is she going question mark, is it going question mark, is John going question mark, are the girls going question mark, are the children going, are the children going question mark. इस तरह का रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. देन कम टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव. now come to negative interrogative. Negative interrogative form of the present continuous tense is formed by first inserting not after is, am, are, then shifting am, are in the beginning of the sentence. तो क्या है? पहले आम लिखोगे, आम आई, यहाँ पे नॉट लगेगा. आम आई नॉट गोइंग, आर वी नॉट गोइंग, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस मिलेगा. Are they not going? Is he or she is he she not going?
Is Ram not going? Are the girls not going? Are the children not going? इस तरह का सेंटेंस रहेगा नेगेटिव इंटरप्रेटिव. Now come to present perfect tense. तो यहाँ पे डेफिनेशन तो हम लिख दिए थे, फिर भी लिख देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का. द प्रेजेंट continuous tense tells us about actions that are happening right now at the time of speaking. Now come to present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense. The present perfect tense. The present perfect tense. यहाँ पे क्या होता है? I use हाज हाव लगता है. हाज और हाव आपको पता है. ही सी इट पकड़े, इट के सामने हाज लगता है और रेस्ट आई यू दे वी ये सब हाव लगता है. तो क्या लगता है? हाज हाव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये पूरी याद रखना है. हाज हाव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो सब्जेक्ट हाज हाव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये शुड बी मीन्स सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हाज हाव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल लेते हैं. आई हाव गन. आई के पास हाव लगता है. वी हाव गन. गन गो वेंट गन थर्ड फॉर्म में, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में. यू हाव गन. ही रहेगा तो हाज लगा. ही हाज गन. सी हाज गन. इस तरह का सेंटेंस रहेगा. इट हाज गन. दे हाव गन. जॉन हाज गन. चिल्ड्रेन हाव गन. एग्जाम्पल लेते हैं. दे हाव, तो थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? वाश्ड देयर हैंड्स. आई हाव डन माई homework. I have done my homework. We have thanked our stars. She has read this story. She has read this story. It has rain. देखिए थर्ड फॉर्म है सब. heavily. Rain heavily. These are the example. Then come to, it is called affirmative sentence or positive sentence.
affirmative. Then come to negative sentence. And then come to negative sentence. यहाँ पे क्या लगता है? The negative form of the present tense, present perfect tense, is formed by inserting not after has or have. एग्जाम्पल लेते हैं, I have not gun, etc. We have not gun. You have not gun. They have not gun. He और she, यहाँ पे has लगता है, has not gun. John has not gun. It has not gun. The girls have not gun. The children have not gun. These are the negative sentence. Then come to interrogative sentence. Interrogative में क्वेश्चन एक्स होता है, तो इंटेरोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे? हाज हाफ क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाता है. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाव आई गन, हाव वी गन, have you gun, has she gun, has it gun, has John gun, have the girls gun, have the children gun. These are the example of interrogative sentence. Then come to negative interrogative. Negative interrogative. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है? हाज हाफ लगता है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड इंसर्टिंग नॉट आफ्टर हाज एंड हाव. जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाव आई नॉट गन, क्वेश्चन मार्क, हाव वी नॉट गन, has he or she not gun, have they not gun, go and gun, has it not gun, has John not gone, have children not gone, have the girls not gone. इस तरह का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. Then come to next. Then come to present perfect continuous.
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज और हैव प्लस बीन लगता है। क्या लगता है? बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। तो दिस इज द फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। तो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे होता है क्या अफर्मेटिव सेंटेंस पहले अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे लगता है आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, you have been going, he has been going। इस तरह का सेंटेंस बनता है। she has been going, it has been going, John has been going, the girls have been going, the children have been going। इस तरह का आप सेंटेंस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दे हैव बीन वॉशिंग। देखिए ing लगा, हैव लगा, बीन सब्जेक्ट दे हैव बीन वॉशिंग देयर हैंड्स फॉर 5 minutes। You have been helping your friend in trouble। Friend in trouble। He has been और she has been जैसे लिखते हैं wearing a new साड़ी। तो she कर देते हैं she has been wearing a new saree daily। और लिख सकते हैं he has been reading a story since 4 PM। You have been helping your friend in trouble। We have been thinking our star all along। The tailors have been sewing clothes since morning। The tailor have been sewing in clothes since morning। देखिए यहाँ पे फॉर लगा है, फॉर यहाँ पे सिंस। तो सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो आप क्या यूज करेंगे
since यूज करेंगे. फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज़ किया गया. फॉर 5 मिनट्स. यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज़ किया गया. देन कम टू नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव में आपको पता है हाज हाफ के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है. एग्जाम्पल जैसे कि आई हैव नॉट गोइंग. आई हैव नॉट बीन गोइंग ऐसे लगता है. वी हैव नॉट बीन गोइंग. You have not been going. He or she or it has not been going. Rama has not been going. The girls have not been going. The children have not been going. These are the example of negative sentence. Then come to negative, then interrogative sentence. Interrogative sentence. यहाँ पे क्या जो होता है, have I been going, have we been going, have they been going, have you been going, has he been going, has she been going, has it been going, has John been going, have the girls been going. Then come to negative interrogative. Negative interrogative. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है, हाफ जब लगता है उसके बाद नॉट लगता है. और हाफ इंटरोगेटिव जो है तो हाफ पहले आ जाता है. एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हाफ आई नॉट बीन गोइंग, हाफ वी नॉट बीन गोइंग, have you not been going, have they not been going, has he not been going, has she not been going, it has it not been going, has Ram not been going,
have the girls not been going, have the children not been going. This is called negative interrogative. This is all about present tense. Please like and subscribe my channel. Next part is past tense. The past tense and its four form, then come to future tense and four form. Thank you. Jai Jagannath.